Good morning, everyone. Welcome to Brainy Lads. And having discussed our first poem, that is Dust of Snow, written by Robert Frost, and the multiple choice questions of the poem, let's move on to a second poem that is Fire and Ice. Got it? So, we'll discuss the multiple choice questions of Fire and Ice in this video lecture. But before we move on, we would request all of you to subscribe to our channel. Do press the bell button so that you can get the regular updates and timely updates. Besides, do visit our official website, that is www.brainylats.in, wherein you find n number of notes, not only of English but also of other subjects as well. So let's move on to the first stanza, guys. Let's have a look at the rhyme scheme as well. Let's have a look at the stanza first. Some say the world will end in fire. तो पहले सबसे पहले गाइस क्या करना चाहिए, आपको राइम स्कीम कैलकुलेट कर लेनी चाहिए. तो फायर है तो ए हो गया. सम से इन आइस, देखिए आइस और फायर की जो राइम है वो मैच नहीं करती, तो लेट अस नेम इट बी. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, फायर एंड डिजायर मैच करते हैं गाइस, सो इट विल बी ए. एंड वंस अगेन फायर, तो दिस विल आल्सो बी ए. सो व्हाट इज द राइम स्कीम गाइस? ए बी ए A. It is very simple to conclude. It is very simple to find out the rhyme scheme of a stanza. बहुत easily आप इस वे से calculate कर सकते हैं. चलिए, let's have a look at the questions, guys. Name the poem. Very simple question. Name the poem. Is it Dust of Snow? No. It is Fire and Ice. It is neither a tiger in the zoo nor the ball poem. Let's move on to the second question, guys. Second question is, who is the poet of Fire and Ice? आपको बताना है guys. Adrian Rich? No. Pablo Neruda? No. Robert Frost? Yes. Stephen Spender? No. So the poet of Fire and Ice is Robert Frost. को याद रखना है, Dust of Snow. Dust of Snow के भी वही है और आपके Fire and Ice के भी वही है. Which literary device has been used in I hold with those who favor fire? फटाफट जल्दी से बताइएगा इस कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज की है. देखिए एफ और एफ है, तो यहाँ पर गाइस एलिट्रेशन जो है उसका यूज किया गया है. करेक्ट, क्लियर है गाइस. एसोनेंस भी दिख रहा है ओ ओ ओ, लेकिन एलिट्रेशन इज द बेस्ट ऑप्शन. तो एसोनेंस और एलिट्रेशन अगर चॉइस में है तो दोनों ऑप्शन आप दे सकते हैं. हाउ मेनी प्रेडिक्शंस डज द पोएट मेक फॉर द एंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड? 2 इज द राइट आंसर. वो 2 प्रेडिक्शंस मेक करते हैं. चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन गाइस. What does fire symbolize according to the poet? Fire क्या है guys? Desire है yes, avarice है yes, greed है yes. तीनों options ठीक हैं, तो what is the best option guys? Option number 4, that is all of these. What is the rhyme scheme of the first stanza in Fire and Ice? अभी मैंने आपको बताया था guys, A B A A. This is the rhyme scheme. A B A B. Dust of Snow की है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. So the right option is second. Which literary device has been used as some say the world will end in fire? has been used in some say the world will end in fire. तो आपको बताना some say, देखो alliteration है, some say the world will end in fire, तो alliteration would be the right option. चलिए let's move on to the next one. आगे बढ़ते हैं guys. Which literary device has been used in some say the world will end in fire? ये तो हो गया था question. आगे बढ़ते हैं guys. Which literary device has been used in the first 2 lines of Fire and Ice? some say से है. जब भी सेम लाइन से शुरू होती है, जब भी सेम, जैसे आप देखिए फर्स्ट लाइन है सम से, सेम पैटर्न पे शुरू हुआ है, उसकी अगली जो लाइन है वो भी है सम से. तो जब ऐसा पैटर्न रिपीट होता है तो लिटरेरी डिवाइस क्या हो जाती है गाइस? एनाफोरा हो जाती है. तो एसोनेंस नहीं होगी, एलिट्रेशन नहीं होगी, एंजेम्बमेंट नहीं होगी. अगर पोएटिक डिवाइसेस के बारे में और पढ़ना है गाइस, यू कैन विजिट अ वेबसाइट, दैट इज www.brainylats.in. इस वेबसाइट पे जाके आप पोएटिक डिवाइसेस को पढ़ सकते हैं. तो फायर एंड आइस इज राइट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज राइट, एसोनेंस इज राइट. 2 वे से खत्म हो सकता है, ऑल ऑफ दीज आएगा, ए बी ए. एलिट्रेशन, इमेजरी कैन ऑल्सो बी आंसर, एंड एनाफोरा. तो सारे आंसर्स ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू सेकंड स्टैंजा. सेकंड स्टैंजा पे बढ़ते हैं गाइस. बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, I think I know enough of hate to say that for destruction eyes it also is also great and would suffice. तो once again guys rhyme scheme एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं. twice हो गया A, hate मैच नहीं कर रहा तो B, twice and eyes मैच कर रहे हैं तो A, और suffice eyes twice से मैच कर रहे हैं तो A.
तो राइम स्कीम क्या हो गई गाइस, ए बी ए ए, दिस इज द राइम स्कीम ऑफ सेकेंड स्टैंजा एज वेल। फर्स्ट की भी यही थी, सेकेंड की भी यही थी। व्हाट डज द वर्ड पैरिश मीन, पहला क्वेश्चन है, पैरिश का मतलब क्या होता है गाइस, फटाफट जल्दी से आइए कमेंट बॉक्स में बताइए कि पैरिश क्या होता है। पैरिश होना क्या होता है, पैरिश होना होता है गाइस एक्सपायर होना, मर जाना, डिसअपियर होना, तीनों होते हैं गाइस पैरिश होने के लिए। राइट आंसर वुड बी ऑल ऑफ दीज। व्हाट डज आइस सिंबलाइज इन फायर एंड आइस अकॉर्डिंग टू द पोएट, इसमें आइस का मीनिंग क्या है गाइस, आइस का मतलब है हेट्रेड, लव नहीं है, वेल बीइंग नहीं है, नन ऑफ दीज नहीं है। गॉट इट। अगर पोम को गो थ्रू करना हो तो यू कैन विजिट अ वेबसाइट जहां पर आपको इसकी समरी भी मिल जाएगी। Which literary device has been used in but if it had to perish twice, देखिए कोई भी नॉन लिविंग चीज को ह्यूमन की जब हम क्वालिटी दे देते हैं, पेरिश होने की क्वालिटी, तो दैट बिकम्स पर्सोनिफिकेशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। सिमिली, एलिट्रेशन, एंजाइनमेंट वुड नॉट बी द राइट ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन गाइस, डी ई एन एफ, ये क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। व्हाट डज द वर्ड सफाइस मीन, सफाइस का मीनिंग क्या होता है गाइस, आपको बताना है। आंसर देना यस, कुछ करना यस, सेवा करना यस, सर्विसेज देना यस। तीनों ऑप्शंस ठीक हैं, तो व्हाट इज द राइट आंसर गाइस, ऑल ऑफ दीस। चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर ई। बाय व्हाट इज ह्यूमन रूल्ड ओवर अकॉर्डिंग टू द पोएट, ह्यूमन के ऊपर क्या रूल करता है, किसके द्वारा रूल किया जाता है ह्यूमन के ऊपर। इज इमोशंस इज द राइट आंसर, बोस इज नॉट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इज नॉट, ऑल ऑफ दीस नहीं होगा, इज इमोशंस इज द राइट आंसर। चलिए लेट्स मूव ऑन। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द सेकंड स्टैंजा इन फायर एंड आइस, अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं गाइस। राइम स्कीम है पूरी पोम की, दैट इज ए बी ए ए। चलिए लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। यही है गाइस, आंसर्स आर गिवन, ए बी ए ए इज द राइट आंसर। हियर्स इमोशंस, ऑल ऑफ दीज, पर्सोनिफिकेशन, हेट्रेड, ऑल ऑफ दीज। तो दोनों बहुत छोटी छोटी सी पोम्स है। पहली जो हमने की दैट इज डस्ट ऑफ स्नो, सेकेंड वन इज फायर एंड आइस। खूबसूरत पोएम है दोनों, और दोनों किसकी लिखी हुई है गाइस, बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो गाइस एमसीक्यू पढ़ने से पहले आई वुड एडवाइज ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू द पोएम, गो थ्रू द समरी, गो थ्रू द short answer type questions, literary devices, messages which you can find on our website. Got it? So that was all about today's lecture guys. I hope you would have enjoyed it. If liked, do share it with your friends, do subscribe to our channel, do press the bell button as well, and do not forget to visit our official website, that is www.brainylats.in for n number of knots. Thank you very much for being with us. Have a nice day.